little bit front. Yeah. So this was a very challenging case because he had done his silicone chin implant augmentation several years ago, and the chin was really broad even after that. 1 second. So we removed the chin implant. And we've done the osteotomy. We've done the augmentation. Okay, sir. 1 minute बस नीचे से. Right. Right. Up ऐसा है ये. You can see. So this was the improvement that we've achieved. Look at the chin. It was very too broad and it was retruded. आपने चिन इम्प्लांट कब लगाया? 3 साल पहले. Before 4 years. 4 years पहले आपने चिन इम्प्लांट लगाया था. वेरी गुड. एंड ये देखिए साइड में अब आपका कैसा लग रहा है ऑलरेडी. चिन इम्प्लांट का साइज आपका 1 सेंटीमीटर था. उसको निकालने के बाद क्या होगा? चिन और कम होगा. अब देखो ज़्यादा हुआ है, लग रहा है. ऐसे देखिए और शेप भी देखो, ये एंगल देखो बढ़ गया, ऑलरेडी आ गया एंगल. ऐसे देखिए, अब देखो ऑलरेडी आ रहा है. ये सूजन कम होगा और बढ़िया हो जाएगा. पहले आपको था ही नहीं. ये हाइट का फर्क पड़ रहा है, ये एंगल करेक्ट है, शेप, लिप्स अंदर है, सब कुछ असिमेट्रिक चिन था, वो भी सही हो गया ना. ये देखो ये साइड कितना इंप्रूवमेंट है देखिए. सो वी हैंडल दिस वाज अ रिविजन चिन ऑगमेंटेशन. What the chin implant basically does is it puts a material of silicone most often on top of the chin. So what does it do? It takes the contour of the chin. So it brings it forward, but it takes the contour of the chin. What we've done for him now is not that. We have augmented the chin both in the vertical and horizontal dimension, but we've also sculpted it so that it was giving him a 3-dimensional change, which is not possible with any chin implant. और आपका चिन का इम्प्लांट पहले बाहर से डाला था ना. सो यू कैन सी अ स्मॉल स्कार ऑल्सो बिकॉज दे यूज अ फाइन इंसिजन इन द सबमेंटल रीजन. एंड दिस टाइम अराउंड आई हैव डन एवरीथिंग फ्रॉम इनसाइड द माउथ. द चिन इम्प्लांट वाज डन एल्सवेयर फॉर हिम. वी डिडंट डू इट एंड दैट वाज डन 4 years ago. आपको अभी दर्द कितना हो रहा है? दर्द ऑलमोस्ट नहीं है. ऑलमोस्ट नहीं है. पहले दिन जब सर्जरी के बाद था, काफ़ी था. थ्रोट में दर्द था थोड़ा सा. ओके, लेकिन मेजर दर्द नहीं था कहीं पे भी. वेरी गुड. वॉज गोइंग ऑन. ठीक है, वेरी गुड. चीक बोन का हाँ, चीक बोन का भी बहुत इंप्रूवमेंट है. आप देखिए कैसा था पहले. हाँ, बहुत वाइड था. छोटा दिख रहा है. अब देखिए, आप फोटो में देखो आपको मालूम पड़ जाएगा. ये मतलब फूला, ये अभी थोड़ा कम हो गया अच्छी तरह से. शेव है अंदर से और कम होगा. तो फेस का क्या हो रहा है? हाइट बढ़ा है, विड्थ कम किया है. यहाँ से भी विड्थ कम हुआ है, यहाँ से भी विड्थ कम हुआ है. तो वैसे दोनों साइड से विड्थ जब कम होता है तो हाइट भी अपने आप बड़ा लगता है. तो फेस प्रोपोर्शनल हो जाता है. ये जो फेस का हाइट है और ये जो फेस का विड्थ है 1.68 1.7 पे होना है अच्छा एस्थेटिक लुक के लिए. पहले देखो कैसा था आपका फेस का शेप. हाँ, वो भी सही हो गया. एसिमेट्री भी सही किए, विड्थ भी सही किए. सो वी हैव डन व्हाट आई कॉल एज cheek contouring. So what is cheek contouring? Cheek contouring is working on the malar bone, working on the buccal pad of fat, 3-dimensionally augmenting the cheek region. This is the cheek region. It comprises of the malar bone, it comprises of the zygomatic arch, it comprises of the lateral orbital wall, comprises of the buccal pad fat and also the soft tissue around it. So when we are augmenting that, when we are altering that kind of a procedure, I call it as cheek sculpting, cheek contouring, because it's an overall either improvement or reduction in the bony volume, in the bony contour, or in the soft tissue positioning, or in the fat volume. So in this case you can see how it was. You can appreciate the improvement. Look at that swelling. The eye looks smaller,
We haven't done anything to the eye. Patient himself says we've done contouring there, we've done work here. The cheek is now in the right place, and this is just day 5. So there's more swelling to happen. There's more swelling to disappear. There's more healing to happen. And so once that happens, he's going to have a much more proportional face. Already it is. बढ़िया है, ठीक है ना. और ये जो आंख के नीचे देखो वो भी कम हुआ है. जो आपकी ग्रूविंग था, ये जो ग्रूविंग अभी यहाँ थोड़ा करने से, वैसे मैंने ग्रूविंग में कुछ नहीं किया है, किया है चीक में, आंख में नहीं किया हम आपके लिए, लेकिन इफेक्ट आंख के बीच में भी पहुंच रहा है ना. चलो, तो आप आज निकल रहे हो और रहते हो मुंबई में. वेरी गुड. तो जाके अच्छी तरह से रेस्ट ले लो, बिकॉज रिविजन जॉ सर्जरी में एक दिक्कत है, दैट इज थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है हीलिंग के लिए. जहाँ पे आपकी सिलिकॉन था, वहाँ पे हमने जो सिलिकॉन निकाला है, सिलिकॉन के ऊपर क्या होता है, एक कैप्सूल बन जाता है. कैप्सूल के ऊपर से वैस्कुलरिटी थोड़ा कम है, तो हीलिंग के लिए टाइम लगेगा. इसकी वजह से आपको 4 वीक्स, जब नॉर्मल पेशेंट्स को बोलते हैं, आप 2-3 हफ्ता एक्स्ट्रा पकड़ना पड़ेगा. ये पहली बार हुआ है, फटाफट 4 हफ्ते में आपको मतलब एकदम नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ. यहाँ पे अभी मेरा जो इनविजिबल लगाना रहना, वो लगा दो आप, थोड़ा सा पेन होता है, नहीं बैठ रहा, वो बैठेगा. हमने दांत में कुछ किया नहीं, इधर है नहीं, कुछ भी इसकी वजह से थोड़ा सा बैठेगा नहीं. वो दर्द हो सकता है, बिकॉज 2 दिन आप लगाए नहीं, आप लगा दो, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है. यू कैन यूज दैट. ओके, टेक केयर, बाय.